So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we are starting the male and female reproductive system pathology. So one by one I'm gonna cover all the important questions which are important for our exam. So today's first topic is benign benign prostatic hyperplasia, that is also known as BPH. ओके सो गाइज मैं इधर पे कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ गिव सम सजेशंस. कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कुछ और मुझे इंप्रूवमेंट्स लाने चाहिए. सो आप आज का वीडियो देखें एंड आपको जो भी सजेशंस लगे यू आर ओपन टू ऑल. ओके सो टुडे वी गोना स्टार्ट विद द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया. Okay, so what is the meaning of benign? So benign means cells are not malignant, मतलब वो neighboring tissues पे नहीं spread होंगे. फिर prostatic का मतलब that is about the means to the prostate gland. And what is hyperplasia? That is the increase in the number of cells, that is hyperplasia. Okay, so हम अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो इट इज़ अ नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड. ओके सो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसकी नॉन कैंसरस ग्रोथ को ही हम क्या बोलेंगे, दैट इज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया. ओके सो इट इज़ कॉमन इन मैन ओवर 50 ईयर्स एंड इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज द नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग. मतलब जनरली मैन में ही होता है एंड इट इज़ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग. मतलब एज होते होते आपको कभी ना कभी ये पैथोलॉजी से सामना करना ही पड़ेगा. ओके सो अब कुछ बात कर लेते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड की. तो व्हाट इज मेन बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड? तो प्रोस्टेट इज अ स्मॉल वॉलनट शेप्ड ग्लैंड दैट सिट्स अंडर द bladder and in front of the rectum. Okay, so under the bladder and in front of the rectum जो होता है that is the prostate gland. आपको डायग्राम में भी दिख रहा है. Okay, so that's about the prostate gland. So simply, so the urethra is the tube through which urine leaves the bladder. तो ये thin पतली सी ट्यूब दिख रही है, तो pink one that is the urethra. Okay, so the urethra is the tube through which the urine leaves the bladder, goes through the prostate before reaching the penis. Okay, so it goes to the prostate. तो prostate gland से जो पास हो रहा है, ठीक है, तो ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है उधर से जो यूरेथ्रा पास हो रही है तो that is known as the prostatic urethra. Okay, so we will call as the prostatic urethra, हम उसको बोल देंगे. Okay, so what is prostatic urethra? The urethra which pass to the prostate before reaching the penis, that is known as the prostatic urethra. Okay, so फिर से देख लेते हैं कि प्रोस्टेट कैसा है कि वो फ्रंट ऑफ द ब्लैडर है एंड फ्रंट ऑफ द रेक्टम सॉरी एंड अंडर द ब्लैडर. ओके सो आपको ये पिंक कलर का जो दिख रहा है दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके एंड प्रोस्टेट यूरेथ्रा मैंने आपको बता ही दिया. ओके सो नाउ विल लुक थ्रू द, हम प्रोस्टेट ग्लैंड को थोड़ा जूम इन कर लिया है. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट वी कैन सी, द प्रोस्टेट इज कवर्ड बाय अ कैप्सूल थ्रू द कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल. ठीक है, तो कैप्सूल है, पूरी राउंडेड कैप्सूल जो आपको दिख रही है. ओके जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दैट इज द फुल कैप्सूल एंड इट इज made up of connective tissue and smooth muscle. Okay, so beneath this layer it is divided into few zones, that is the zones are the central zone, the peripheral zone and the transitional zone. Okay, so 3 zone हो गए. So now one by one we look through the different zones. So first zone is the peripheral zone. ठीक है, तो बाहर के से अंदर की तरफ हम जा रहे हैं, that is the first one is the peripheral zone. So it is the largest zone and 70% of the glandular tissue are present there. Okay, so 70% of the glandular tissue and it is the largest zone, that is the peripheral zone. Okay, so peripheral zone ये हो गया. The second one is the central zone. So what about the central zone? The central zone is that consists of the 25% of the glandular tissue. Okay, so 25% of the glandular tissue is the central zone. Okay, and ejaculatory ducts that join the prostatic urethra are also present in the central zone. Okay, so 25% of the glandular tissue and ejaculatory ducts are present in the central zone. Okay, so green color से जो arrow जा रही है that represents the central zone. Okay, and the first one was the peripheral zone, that was the largest zone and 70% of the glandular tissue are present in that zone. Okay, and the third and the last one zone is the
दैट इज द ट्रांजिशनल जोन. ओके, सो ट्रांजिशनल जोन में क्या है, दैट इज 5% ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू पोर्शन ऑफ द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड कंटेन्स द ट्रांजिशनल सेल्स. तो ट्रांजिशनल सेल्स की वजह से ही इसको ट्रांजिशनल जोन नाम मिला है. ओके, सो 3 जोन्स बेसिकली कवर्ड विथ कैप्सूल पहले, तो फिर कैप्सूल के अंदर हमने देखा दैट इज डिवाइडेड इन 3 जोन्स, पेरिफेरल, सेंट्रल एंड ट्रांजिशनल, एंड आई हैव ऑल टोल्ड अबाउट द जोन्स. ओके, सो नाउ वी लुक थ्रू द माइक्रोस्कोप. ठीक है, हमने एक सेल निकाला एंड वी आर लुकिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप. तो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल ईच ऑफ द टाइनी ग्लैंड्स दैट मेक अप द प्रोस्टेट इज सराउंडेड बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन मेडली लार्जली ऑफ कोलेजन. तो जो आपको ये छोटे 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 सेल्स दिख रहे हैं that are lined by the basement membrane. Okay, and the basement membrane is largely made up of the collagen cells. Okay, so जो basal cells हैं वो कहाँ किससे बने हुए हैं, that is the basement membrane. Okay, so within the basement membrane it is there is a ring. Within the median membrane is a ring cube shaped basal cells as well as a few neuroendocrine cells. ठीक है, तो ये जो ऑरेंज कलर के जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो मैं इधर पे दिखा रहा था पहले, ये जो बाहर की तरफ जो है ये सब दैट आर द बेसल सेल्स, और बीच बीच में जो ग्रीन कलर के जो सेल्स दिख रहे हैं आपको दैट आर द न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन किसको किसको अलाइन कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली द बेसल सेल्स एंड द न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स. ओके, सो देयर इज अ इनर रिंग, there is a inner ring of the luminal columnar cells which are within the lumen, और बोल सकते हैं और the center of the glands. okay, so जो हमने जो सेल्स है, जो कॉलमिनर टाइप सेल्स है, दैट आर द लूमिनल कॉलमिनर सेल्स. ओके, सो पहले तो हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन से बेसल सेल्स जोड़ा एंड बेसल सेल्स के ऊपर कौन लाई कर रहा है, दैट आर द लूमिनल कॉलमिनर लूमिनल सेल्स. ओके, सो ये लूमिनल सेल्स का फंक्शंस क्या है, दे सिक्रीट द सब्सटेंसेस इनटू द प्रोस्टेटिक फ्लूइड दैट मेक इट स्लाइटली एल्कलाइन. ठीक है, तो जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो सिक्रीट करती है जो चीज़ें, वो क्या करती है, उसको एल्कलाइन बनाती है. ओके, एंड गिव न्यूट्रिएंट्स फॉर द स्पर्म. ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी बनाएगी स्पर्म के लिए. ओके, सो इट गिव्स न्यूट्रिएंट्स टू द स्पर्म. ओके, एंड हेल्प्स टू सर्वाइव इन द एसिडिक वजाइना. तो एल्कलाइन था स्पर्म, तो वो क्या करेगा कि इट हेल्प्स इन द ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, वो अगर एंटर कर जाएगा वजाइना में, तो इट विल हेल्प द स्विमिंग करने में मदद करेगा. तो जो भी सिक्रीशंस होंगे ल्यूमिनल सेल्स के, दैट विल हेल्प द स्पर्म टू स्विम थ्रू द एसिडिक नेचर ऑफ द वजाइना. ओके, सो कमिंग ड्यूरिंग द इजैकुलेशन sperm leaves the testis. ठीक है, then it comes to the vas deferens. From vas deferens it goes to the ejaculatory ducts and then to the prostatic urethra. Okay, so उसके बाद क्या होता है कि smooth muscles in the prostate contract and push the prostatic fluid into the urethra. ठीक है, so स्पर्म आया, वास डिफरेंस में गया, इजैकुलेटरी डक्ट्स में आया, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में आया, एंड जो स्मूथ मसल होंगे यूरेथ्रा के, जो कंट्रैक्ट होंगे, एंड they push the prostatic fluid into the urethra where it joins the sperm and semen that are secreted from the seminal vesicles. Okay, so the luminal cells produce prostate specific antigen that helps to liquefy the semen after the ejaculation. मतलब वो alkaline बनेगा, फिर उसमें nutrients डालेगा ताकि अब वो acidic nature of the vagina को survive कर सके. Okay, simple है. So now moving on towards the basal cells. So basal cells and luminal cells of the prostate rely on the stimulation of androgens, okay, or the male sex hormone for the survival. तो basal cells को survive करने के लिए basically male sex hormones that are the androgens की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो androgens क्या क्या करते हैं, that is दो mainly hormones secret होते हैं, that is the testosterone and the testosterone and the dihydrotestosterone. Okay, so dihydrotestosterone and the testosterone, and testosterone is produced by the testicles. Okay, and dihydrotestosterone is produced by the prostate. Okay, so prostate gland क्या produce करेगा, that is the dihydrotestosterone. Okay, and जो एंजाइम होगा, हमने इधर पे देखा है कि 5-alpha reductase enzyme. Okay, so I will tell you that is the 5-alpha reductase enzyme. इधर पे आप देख सकते हैं 5-alpha reductase enzyme क्या करेगा
कि टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करेगा. इट विल कन्वर्ट द टेस्टोस्टेरोन टू द डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन. ओके. एंड एंड्रोजन्स आर स्टेरॉइड्स, जो स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सो दे कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ओके, सो द क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू द रिसेप्टर्स. ओके, सो वो अगर बाइंड कर जाएंगे तो वो क्या क्या इफेक्ट शो करेंगे, दैट इज दिस ऑल इफेक्ट्स विल बी शोन. दैट इट विल इनहिबिट द एपोप्टोसिस एंड अलाउ ल्यूमिनल एंड बेसल सेल्स इन द प्रोस्टेट टू कीप ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग. तो ये ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग तो बेसिकली हमको इधर से ही पूरा समझ में आ रहा है. ठीक है, तो क्या होगा कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में 5 अल्फा रिडक्टेज है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. एज बढ़ने के साथ साथ एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हमारी, वैसे वैसे ये एंजाइम भी बढ़ता जाएगा. एंड अगर ये एंजाइम बढ़ा तो हमने बोला कि ये स्टीरॉयड है, तो डायरेक्ट उसकी परमेबिलिटी आ जाएगी एंड इट विल इनहिबिट द एपोप्टोसिस. तो एपोप्टोसिस में तो सेल डेथ नहीं हो पाएगी, एंड सेल डेथ नहीं हो पाएगी तो इट विल कंटिन्यूसली ग्रो, एंड कंटिन्यूसली ग्रो होने की वजह से द सेल नंबर विल गो ऑन इंक्रीजिंग, रिजल्टिंग इन कंडीशन दैट इज द बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया. ओके, सो समझ में आ रहा है आपको क्या हुआ. मैंने अभी क्या बोला आपको कि 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम था, उसके इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे साथ चेंजेस हुए, दैट इज द मेन कॉज, या बोल सकते हैं मेनली कॉज ऑफ द बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया. ओके, एंड हमको इतना भी पता होना चाहिए कि डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन इज 10 times more potent than testosterone because it can bind to the androgen receptor for the longer time. So dihydro testosterone that is produced by the prostate gland is 10 times more potent the testosterone produced by the testicles. Okay, so after the age of 30, men produce about 1% लेस टेस्टोस्टेरोन पर ईयर. ठीक है, तो 30 के एज के बाद की टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, बट द 5 अल्फा रिडक्टेज एक्टिविटी इंक्रीजेज विथ एज एंड दैट विल इंड्यूस द डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन लेवल. बिकॉज हमने देखा कि 5 अल्फा रिडक्टेज क्या कर रहा था, दैट वाज कन्वर्टिंग टेस्टोस्टेरोन टू द डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, टी को डी टी में कन्वर्ट कर रहा था, मैंने इधर पे ऐसे डिनोट किया है. ओके, सो ये इधर पे ऐसे कन्वर्ट हो रहा था, तो ये अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ेगा. ओके, और डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, एक सेकंड ना, और अगर डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा तो जो बेजल एंड लेमिनल सेल्स है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा एंड इनहिबिशन ऑफ द एपोप्टोसिस. ओके, एपोप्टोसिस का भी इनहिबिशन हो जाएगा. ठीक है, तो उसकी वजह से दैट विल लीड टू द मोर एंड मोर इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल्स, दैट इज हाइपरप्लेजिया. ओके, एंड दैट इज, एंड हमने पहले ही देखा कि इट इज़ द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड इट इज़ अराउंड 50% ऑफ द मैन डेवलप बाय द एज ऑफ 60 एंड मोर देन 90, अराउंड 90% डेवलप बाय द एज ऑफ 85. ओके, सो क्या करेंगे, but the alpha reductase activity increases with age, so with less testosterone there can be increase in the testosterone level. ठीक है, तो मैंने वही बोला कि अगर 5 अल्फा रिडक्टेज बढ़ेगा तो कन्वर्जन भी बढ़ जाएगा. सो नॉर्मल प्रोस्टेट सेल्स रिस्पॉन्ड, सो जो नॉर्मल प्रोस्टेट सेल्स रिस्पॉन्ड टू द इंक्रीज डाइहाइड्रोस्टेरोन लेवल्स बाय लिविंग लॉन्गर एंड मल्टीप्लाइंग. तो ऑब्वियस सी बात है कि डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर ज़्यादा है तो वो क्या कर रहा था कि लेमिनल सेल्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो मदद कर रहा था. तो इनका नंबर जो है वो बढ़ता चला जाएगा ओवर टाइम. ठीक है, तो अगर वो बढ़ा तो उसकी वजह से क्या होगा कि डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा एंड जो सेल्स का नंबर है वो तो घट ही नहीं रहा, बिकॉज एपोप्टोसिस का भी वो इनहिबिशन कर रहा है. सो दैट विल लीड टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड दैट इज द कॉज ऑफ द मेन कॉज ऑफ BPH. ओके, सो ये जो एक्टिविटी है दैट इज द मेन कॉज फॉर benign prostate hyperplasia. Okay, so now moving towards next,
नो रिस्क फॉर डेवलपिंग सेल म्यूटेशन दैट लीड टू द प्रोस्टेट कैंसर, बिकॉज बिनाइन कंडीशन है तो मेलिग्नेंसी इसमें शो नहीं होगी. एंटायर प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जेस यूनिफॉर्मली एंड स्मॉल हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स फॉर्म विद इन इट. ओके, सो छोटे छोटे जो नोड्यूल्स आपको दिख रहे हैं वो इधर पे वो फॉर्म हो जाएंगे. ओके, दिस नोड्यूल्स आर स्मूथ, इलास्टिक एंड फर्म एंड आर मिस्टेकन फॉर द प्रोस्टेट कैंसर. तो ये थोड़े नोड्यूल्स प्रोस्टेट कैंसर नहीं होते, ये हमको मेन याद रखनी है. इट इज़ जस्ट द नोड्यूल फॉर्मेशन, इट इज़ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, नॉट द प्रोस्टेट कैंसर. ओके, टिपिकली hyperplastic nodules will form in the inner portions of the gland, specifically around the prostatic urethra called the periurethral zone. तो ये periurethral zone है जहाँ पे एंड हो रहा है, वहाँ पे ये सब nodules बनेंगे. ओके, so when these nodules or the prostate tissue itself compress the prostatic urethra, okay, so nodules will compress the prostatic urethra and that will induce to, मतलब ये अगर पूरा प्रेस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द यूरिन टू पास थ्रू. ओके, सो द यूरिन बिल्ड्स अप इन द ब्लैडर कॉजिंग इट टू डायलेट. तो वो ऊपर जाएगा एंड वो ब्लैडर को पूरा क्या कर सकता है, डायलेट करेगा. ओके, सो इट विल डायलेट द ब्लैडर. ओके, इन रिस्पॉन्स द स्मूथ मसल वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट हार्डर. ओके, सो ये जो है वो और कंट्रैक्ट करेगा ताकि, बिकॉज इधर पे तो वो जमा हो रहा है तो उसको पास आउट करना है इसको, बट ये होने नहीं देगा बिकॉज नोड्यूल्स बन चुके हैं. तो इसको पास आउट करने के लिए और कंट्रैक्ट, इट विल कंट्रैक्ट हार्डर टू पास आउट द यूरिन. सिंपल सी बात है. दिस विल लीड द ब्लैडर हाइपरट्रोफी व द वॉल्स थिकन एंड बिकम इजीली इरिटेटेड. सो ये जो वॉल्स जो सारी है इधर पे ब्लॉक है एंड वो कंट्रैक्शन का फोर्स कब बार बार लगा रहा है तो इट विल कॉज द इरिटेशन. ओके, सो इट विल कॉज द इरिटेशन. सिंपल सी बात है. ओके, सो स्मूथ वाला कंट्रैक्शन इट विल रिजल्ट इन द ब्लैडर हाइपरट्रोफी. ओके, ठीक है. सो एज यूरिन बिल्ड्स अप, इधर पे और देख सकते हैं आप, एज यूरिन बिल्ड्स अप द ब्लैडर कॉजिंग इट टू डायलेट द स्टैग्नेशन ऑफ द यूरिन, मतलब यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगी. प्रमोट्स द बैक्टीरियल ग्रोथ. अब इधर पे यूरिन जमा हो गई तो इधर पे बैक्टीरिया आने के चांसेस बन सकते हैं. ठीक है, तो बैक्टीरिया आने के चांसेस बढ़ सकते हैं इधर पे. ओके, सो stagnation of the urine in the bladder which promotes bacterial growth and it can cause the urinary tract infections. Okay, urinary tract infections भी हो सकते हैं. Okay, so now coming on towards the symptoms, that is the symptoms will start to show when there is the prostatic urethra obstructed. Okay, so जो ये obstruction हो रहा था इसके बाद ही हमको सब सिम्टम्स दिखना चालू होंगे. ओके, सो स्टार्ट विद इन द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा व्हेन ऑब्स्ट्रक्टेड. इट कैन लीड टू द वीक एंड इनकन्सिस्टेंट स्ट्रीम ऑफ यूरिन, दैट इज द ड्रिबलिंग हो गया. ओके, मतलब कंटिन्यू यूरिन नहीं निकल पाएगी बिकॉज ऑफ द नोड्यूल्स फॉर्मेशन एंड द कंप्रेशन ऑफ द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. ओके, पर्सन माइट ऑल्सो हैव स्ट्रेन व्हेन यूरिनेटिंग टू ओवरकम द ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, तो मतलब उसको ऐसा है कि ढंग से यूरिन नहीं हो पाएगी. पेन ड्यूरिंग द यूरिनेशन, दैट इज द डिसयूरिया, एंड ट्रबल इन इनिशिएटिंग द यूरेशन, दैट इज नोन एज द हेजिटेंसी. ओके, सो ड्रिबलिंग, डिसयूरिया, स्ट्रेन व्हेन यूरेटिंग एंड हेजिटेंसी आर सम ऑफ द सिम्टम्स. एंड यूरिनरी बिल्ड्स अप इन द ब्लैडर बिकॉज ब्लैडर डायलेट हो जाएगा एंड नीचे तो नोड्यूल फॉर्मेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है. दैट विल रिजल्ट इन द सेंस ऑफ इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग एंड increased frequency of urination at the night called as nocturia. Okay, so nocturia is also one of the symptoms. Okay, so obstruction हो जाएगा, उसके वजह से यूरिन पास नहीं हो पाएगी एंड यूरिन पास नहीं होगी तो वो नॉक्चुरनल उसको यूरिनेशन जाना पड़ेगा. ओके, सो दैट इज द मेन कंडीशन या फिर बोल सकते हैं मेन सिम्टम्स ऑफ द बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया. सो नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द डायग्नोसिस. तो आप इधर पे डायग्राम में देख सकते हैं कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कैसे हो रहा है. दैट इज फिंगर इज इंसर्टेड इनटू द रेक्टम टू फील अगेंस्ट द एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टम. ठीक है, तो अगर
उधर पे नोड्यूल फॉर्मेशन जैसा कुछ लगेगा हमको, तो देन वी कैन टेल दैट इट इज़ द कंडीशन ऑफ द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया. ओके, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट can cause the benign prostatic hyperplasia, can lead to the symptom of the benign prostatic hyperplasia. And hard nodules could be, हम ज़्यादातर नहीं बोलते, मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टेकन हो जाता है, बट इट कैन cause the prostate cancer, that is the hard nodules. Okay, so enlarged prostate हो गया, that is BPH का इंडिकेशन शो कर सकता है, एंड हार्ड नोड्यूल्स दैट कुड बी द प्रोस्टेट कैंसर. एंड PSA का क्या होगा? PSA किससे रिलीज हो रहा था? दैट इज द लेमिनार सेल्स से हो रहा था, लेमिनार सेल्स से हो रहा था रिलीज PSA. तो ऑब्वियस सी बात है कि लेमिनार सेल्स बढ़ेंगे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के प्रेजेंस में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी PSA का लेवल भी बढ़ जाएगा. सो इट इज़ द मेन साइन बोल सकते हैं BPH का, दैट इज इंक्रीज लेवल ऑफ द प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इन द benign prostate hypertrophy. Okay, so now towards the last, that is the treatment, that is relieving obstruction and allowing the urine to. तो ये हमारा अल्टीमेट गोल बन जाता है कि हमको ऑब्स्ट्रक्शन हटा के नॉर्मली यूरिन को फ्लो करवाना है. ओके, सो फेनिस्टेरॉइड, ठीक है, तो फेनिस्टेरॉइड क्या है? दैट इज द 5-alpha reductase inhibitors that shrinks the prostate gland and inhibiting the conversion of testosterone into डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. तो 5HT, जो 5-alpha रिडक्टेज वो क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करने से वो रोक देगा. ओके, सो ये रोक देगा इधर पे, तो ऑब्वियस सी बात है ये कम हो जाएगा, एंड ये कम होगा तो जो ग्रोथ होगी, सेल ग्रोथ है, वो कम हो जाएगी. सिंपल है, सेल ग्रोथ कम हो जाएगी. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द फेनेस्टेरॉइड. एंड और भी कौन कौन से एग्जांपल है? दैट इज अल्फा-1 एंटागोनिस्ट. ओके, एंड अल्फा-1 एंटागोनिस्ट क्या करेंगे? दैट विल बाइंड टू द अल्फा-1 रिसेप्टर्स. ओके, एंड अल्फा-1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करके वो क्या करेंगे कि रिलैक्सेशन करेंगे, बिकॉज अल्फा-1 रिसेप्टर पहले नॉर्मल में कंट्रैक्शन करवा रहे थे, बट ये इधर पे रिलैक्स करवा देंगे बिकॉज देर आर द अल्फा-1 एंटागोनिस्ट. ओके, सो अल्फा-1 एंटागोनिस्ट, इधर पे अल्फा-1 एंटागोनिस्ट यूज करेंगे. दैट इज द एग्जाम्पल कौन सा? दैट इज द फिनॉक्सीबेंजामाइन. ओके, सो फेनिस्टेरॉइड एंड फिनॉक्सीबेंजामाइन हम यूज करेंगे. एंड सर्जिकल प्रोसीजर में दैट इज द टर्प, और बोल सकते हैं ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, मतलब प्रोस्टेट का एक पार्ट निकाल सकते हैं या फिर पूरा ही प्रोस्टेट हम उसको बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है, हम बाहर निकाल देंगे, दैट इज़ द सर्जिकल प्रोसीजर. तो ट्रीटमेंट में क्या कि अंडरलाइंग कॉज को हम दैट इज़ रिलीविंग द ऑब्स्ट्रक्शन एंड नॉर्मली फ्लो ऑफ यूरिन करेंगे. एंड फेनेस्टेराजाइड एंड अल्फा-1 एंटागोनिस्ट हम देंगे, फेनेस्टेराजाइड एंड फिनॉक्सीबेंजामाइन. एंड सर्जिकल प्रोसीजर में दैट इज़ द टर्प, दैट इज ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया. तो एक क्विक रिकैप या फिर बोल सकते हैं पूरा सा मैंने एक इधर पे समरी टाइप बनाया कि क्या हो रहा है कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द 5 रिडक्टेज एक्टिविटी इन द प्रोस्टेट, उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो रहा था डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, जिसकी वजह से लेमिनार सेल्स का ग्रोथ बढ़ रहा था. ओके, सो इट इज़ द नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग एंड इट डज नॉट इंक्रीज द रिस्क फैक्टर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इट कैन ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जिसकी वजह से ये डायलेट हो रहा था एंड कंट्रैक्शन हो रहा था, उसकी वजह से इरिटेशन होगा एंड दैट विल लीड टू द मेन सिम्टम, दैट इज द नॉक्ट्यूरिया. ओके, या फिर बोल सकते हैं ड्रिबलिंग बोल सकते हैं, या फिर incomplete feeling of the urination. Okay, that will cause the urine retention, and urine retention will bladder dilates and hypertrophy will take place. Okay, symptoms में urinary hesitancy, dysuria, dribbling, feeling of bladder fullness and nocturia मैंने अभी बता दिया because of the obstruction. and treatment में 5-alpha reductase inhibitors, that is main example हमने अभी कौन सा पढ़ा, that is the इधर पे ही देखा हमने, that is the फेनिस्टेरॉइड. ओके, तो फेनिस्टेरॉइड एंड अल्फा-1 एंटागोनिस्ट, दैट इज द फिनॉक्सीबेंजामाइन. ओके, तो फिनॉक्सीबेंजामाइन एंड फेनेस्टेरॉइड एंड टर्प प्रोसीजर, दैट इज द सर्जिकल प्रोसीजर. एंड उसका फुल फॉर्म क्या था? दैट इज द ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड. तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा पूरा, बिकॉज कुछ है नहीं, यूरेथ्रा कहाँ था कि फ्रंट ऑफ द रेक्टम
एंड अबव एंड बिलो द यूरेथ्रा था, ठीक है। उसका फंक्शंस कौन कौन से थे, तो ये एक डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज उसके 3 जोन, प्रोस्टेट के सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ट्रांजिशनल जोन। उसमें सबसे बड़ा पेरिफेरल जोन एंड सबसे छोटा वो था, दैट इज द ट्रांजिशनल जोन बिकॉज इट वाज कंटेनिंग द ट्रांजिशनल सेल्स। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम हो जाता है बिकॉज इधर पे बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलेजन से बना है एंड प्रेजेंस ऑफ बेसल सेल्स, न्यूरोएंडोक्राइन एंड द लुमिनल सेल्स दैट विल सिक्रीट द प्रोस्टेटिक फ्लूइड। वो उसके फंक्शन एल्कलाइन न्यूट्रिएंट्स टू द स्पर्म एंड इट विल हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ द स्पर्म इन द एसिडिक नेचर ऑफ द वेजाइना। ओके, सो ये पूरा प्रोसीजर, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। मेनली तो आपको फाइल फॉर रिडक्टेज इनहिबिटर्स देना है बिकॉज फाइल फॉर रिडक्टेज की एक्टिविटी की वजह से ही टेस्टोस्टेरोन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो रहा था, वो क्या ग्रोथ में मदद कर रहा था लेमिनल कॉलमिनार सेल्स के, और इट वाज इंक्रीजिंग द सेल नंबर। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा गाइज। मैंने कुछ नया करने का ट्राई किया है, सो प्लीज़ डू सपोर्ट मी डूइंग दैट एंड होप सो, एंड until then stay safe, stay home, stay happy. Thank you.